નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, ડે સ્પેશિયલ કાર્યક્રમમાં આપનું સ્વાગત છે અને ડે સ્પેશિયલ કાર્યક્રમમાં વાત કરીશું ક્યાંક ભારતની અને લાખો યુવાનો છે કે જેમણે ભારત વિશે સપનાઓ જોયા હોય. કેવું ભારત હોય તો કે અખંડ ભારત હોય. અખંડ ભારતનું જેમણે સપનું જોયું હોય. ભારતીય સંસ્કૃતિની વાત કરીએ તો એમ કહે છે કે ભારતીય સંસ્કૃતિ વિશ્વની સંસ્કૃતિમાંથી સર્વશ્રેષ્ઠ સંસ્કૃતિ છે. તમે જુઓ, ભારતીયો ફોરેનમાં જાય છે, કેમ જાય છે? વિદેશમાં જાય છે કે પૈસા કમાવા. વિદેશીઓ ભારતમાં કેમ આવે છે? કારણ કે ભારતની સંસ્કૃતિ અમૂલ્ય છે ને સંસ્કૃતિને જોવા આવે છે કે ભારતમાં તો એવું શું છે. ભારતીય લોકો સંસ્કારી છે. જુઓ, વસુદેવ કુટુંબકમ, વિશ્વ કલ્યાણની ભાવના કોનામાં છે? તો ભારતીયોમાં છે. આ બધી જ વાતો ભારતને ક્યાંક વિશ્વગુરુ બનાવવાની દિશામાં લઈ જાય છે એવું કહેવાય છે. પરંતુ બીજી વસ્તુ એ પણ છે કે દરેક ધર્મનું અહીં સન્માન થાય છે અને દરેક ધર્મનું સન્માન થવું જોઈએ. આવા કેટલાક ઉદ્દેશ, હું એટલે વાત કરી રહ્યો છું આ બધા ઉદ્દેશની, કે દરેક ધર્મનું સન્માન થવું જોઈએ, ભારત વિશ્વગુરુ બનવું જોઈએ, ભારતની સંસ્કૃતિ બેજોડ ને અજોડ છે. આ બધી જ વાતો લઈને એક સંગઠન, એક યાત્રા કાઢવાનું છે. હવે સવાલ એ થાય કે ઘણા બધા એનજીઓ છે, ઘણા બધા સંગઠન છે, ભારતને વિશ્વગુરુની વાત કરતા હોય કે યુવાઓની વાત કરતા હોય, સર્વ ધર્મની વાત કરતા હોય, સંસ્કૃતિની વાત કરતા હોય, તો ડે સ્પેશિયલ કાર્યક્રમમાં આ કેમ? કારણ કે પહેલી વાર એવું બની રહ્યું છે કે વિશ્વ સૂર્ય રથયાત્રાનું આયોજન થઈ રહ્યું છે. વિચાર કરો, વિશ્વ સૂર્ય રથયાત્રાનું આયોજન થઈ રહ્યું છે અને સૂર્ય યોદ્ધા જે એક સંગઠન છે, આ સંગઠન દ્વારા આયોજન થઈ રહ્યું છે. એટલે ડે સ્પેશિયલ કાર્યક્રમમાં એક પ્રયાસ કર્યો કે આવી તો કઈ રથયાત્રા છે કે જે વિશ્વમાં ફરવાની છે, જે ભારતને કહેવાય કે હાઇલાઇટ કરવાની છે. અને બીજી એક વસ્તુ કે સૂર્ય યોદ્ધા જે સંગઠન છે એનો ઉદ્દેશ શું છે, આવો જાણીએ. કારણ કે વર્ષોથી જ્યારે આવો પ્રયાસ થયો છે ત્યારે એક યુવાન, એક સંગઠન જો આવો પ્રયાસ કરતું હોય તો એક ભારતીય તરીકે, એક યુવા તરીકે આપણે પણ જાણવું જોઈએ કે આ સંગઠન શું છે, હેતુ શું છે. અને ભાઈ ભારતની વાત હોય, ભારતીયોની વાત હોય તો આપણે કેમ એમાં સહભાગી ન થઈએ? આ એક વિચાર સાથે ડે સ્પેશિયલ કાર્યક્રમમાં ખાસ ચર્ચા કરવી છે સૂર્ય યોદ્ધા સંગઠનની અને વિશ્વ સૂર્ય રથયાત્રાનું જે પ્રથમ આયોજન કરો. કારણ કે આજ સુધી આવી કોઈ રથયાત્રા નીકળી નથી, સૂર્ય રથયાત્રા. અને આ રથયાત્રાનું જેણે આયોજન કર્યું છે અને સૂર્ય યોદ્ધા જે સંગઠન છે એના સ્થાપક અને સુપ્રીમો ડે સ્પેશિયલ કાર્યક્રમમાં આજે આપણા મહેમાન બન્યા છે अर्जुन सिंह ठिकरिया हमारे साथ है. अर्जुन सिंह, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में. सर्वप्रथम बहुत बहुत धन्यवाद. अर्जुन सिंह, पहला ही सवाल ये है कि संगठन एनजीओ बहुत सारे होते हैं, आपने ये सूर्य योद्धा नामक जो संगठन बनाया उसके पीछे उद्देश्य क्या है? क्यों संगठन बनाया, क्या उद्देश्य और नाम सूर्य योद्धा क्यों? दिलीप जी, आपने बहुत तथ्यपूर्ण बात अर्ज करी है और मैं भी आपको कहना चाहूँगा, भारतवर्ष में सामाजिक अनेकों संगठन हैं जी, लेकिन भारत तो एक परिवार है. भारत आज से नहीं, सृष्टि की जब से उत्पत्ति हुई है तब से अखंड है. तो हम आज भी सामाजिक विचारधाराओं में जिस प्रकार अपने आप को देखने की कोशिश करते हैं या अग्रसर कर रहे हैं, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि ये भारत का कहीं ना कहीं दुर्भाग्य है. परम सौभाग्य क्या है? परम सौभाग्य है कि भारत में धर्म, पंथ, समुदाय इत्यादि हर विषय को लेके कार्य किया जाता है, हर विषय को लेके मान सम्मान व्यक्ति स्वयं धारण करके विराजमान है. लेकिन सूर्य संपूर्ण मानव जाति का एक ऐसा प्रतीक है, सूर्य संपूर्ण मानव जाति में एक ऐसा संकेत देने का कार्य करते हैं कि वह किसी के भी घर को प्रकाशित करने से पूर्व उसका पंथ, समुदाय और उसका धर्म नहीं पूछते. तो इसी में तो भारत की अनुभूति हम कर पाते हैं. मैं कहने जा रहा हूँ कि आदिदेव जो भगवान सूर्य हैं, उसी में मैं भारत को देखता हूँ. और ये भारत का परम सौभाग्य है कि भारत में सूर्य योद्धा जो प्रत्येक धर्म, पंथ, समुदाय के लिए संगठन बनने जा रहा है और इस संगठन के माध्यम से समुदाय की, पंथ की और धर्म की विचारधाराओं से बहुत परे होके आदिदेव के विचारों को, कर्मयोग को हम पुनः स्थापित करने का कार्य करेंगे. अच्छा, कैसे ये विचार आया? क्योंकि सदियों से आपने बोला कि अखंड भारत है, जब से भारत बना है. मैं बोलता हूँ कि चलो भारत आज़ाद हुआ उसके बाद भी अखंड भारत है. ये विचार, ये सोच कैसे आपके दिमाग में आई और कैसे सोचा कि एक ऐसा संगठन होना चाहिए कि जो इस बात को और भी आगे बढ़ाए? दिलीप जी, ये महाशक्तियों का विषय है. मैं आपको अर्ज करूँगा, प्रत्येक क्षण अंश सुनिश्चित शक्तियों के द्वारा किया जाता है. धर्म, पंथ, समुदाय ये तो हमारे स्वयं के विचार हैं, ये नियति का सत्य नहीं है. इसे मैंने विचार करा, मैं यूँ नहीं कहना चाहूँगा,
ये साक्षात आदिदेव का आशीर्वाद और आदिदेव का आदेश था कि इस प्रकार से एक विचार की उत्पत्ति हो, और उत्पत्ति होने के पश्चात इस प्रकार की एक संगठन, एक कैडर हम नियुक्त करके भारत राष्ट्र में आदिदेव के विचारों के लिए कार्य करें। ठीक है, आदि विचारों के लिए कार्य करें आपने सोचा, शुरू कब किया, कैसे किया और कहाँ से किया? ये पूरा जो संगठन आपने जो बनाया है सूर्य योद्धा संगठन, कैसे शुरू किया और कब किया? अवश्य मैं आपको कहना चाहूँगा। देखिए, हाल ही में मैंने एक द रॉयल मैनर्स यूनिटी ऑफ द रॉयल कल्चर, जिसमें भारत के राजा महाराजाओं की संस्कृति को रिप्रेजेंट करने का कार्य करा था, एक मैगज़ीन हमने हाल ही में लॉन्च करी थी। उसके बिल्कुल पश्चात मैं उस यात्रा में ही था और कोरोना आ गया। कोरोना के पश्चात लगभग पूरे विश्व में हर युवान को अपने आप के साथ रहने का अत्यधिक समय मिला। मैं अपने व्यक्तिगत तौर पे या व्यक्तिगत जीवन में कुछ इस प्रकार की गतिविधियों में इन्वॉल्व हूँ जो साधक जीवन से आती हैं। उस उपरांत जब मैंने स्वयं को लेके, भगवान राम को लेके, भगवान कृष्ण को लेके, आदिदेव को लेके खूब चिंतन किया, तो हमारे फेस ऑफ द कैंपेन रॉयल मैनर्स के बाबूजी प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब हैं, उन्हें साक्षात सूर्य भगवान के द्वारा ये आदेश प्राप्त हुआ कि इस प्रकार आप एक संगठन का नियुक्ति करें, और संगठन नियुक्ति करने के पश्चात विश्व की प्रथम सूर्य रथ यात्रा का महाआयोजन आप भारत की धरा से करें। और इस रथ यात्रा का प्रारंभ हम सूरत तापी, जो सूर्य पुत्री कही जाती है, आज से नहीं पौराणिक समय से, वहाँ से प्रारंभ करते करते गुजरात के बोरसद सूर्य मंदिर, और बोरसद से मोढेरा के सूर्य मंदिर, और मोढेरा से ओडिशा के कोणार्क मंदिर तक हम इस रथ यात्रा के महाआयोजन उपरांत लाखों जनमानस तक पहुंचने का कार्य करें और आदिदेव के विचारों को घर घर पहुंचाने का कार्य करें। ठीक है, एक उद्देश्य ऐसा है कि जातिवाद का जो जहर है फैला हुआ है भारत में, आप पहले तो ये मानते हो कि सही में अभी भी जातिवाद का जहर हर एक समाज में, हर एक शहर में, हर एक गांव में, हर एक जगह देखने को मिलता है? निश्चित रूप से ये भारत का मैं दुर्भाग्य कहना चाहूँगा। दुर्भाग्य इसलिए चूँकि ये केवल सामाजिक हितों को साधने के लिए कुछ समाज के जो दूषित तत्व हैं उस प्रकार के लोग इस कार्य को करते हैं। जातिवाद का तो प्रश्न होना ही नहीं चाहिए, और इसका सबसे बड़ा संकेत यद्यपि या माध्यम यद्यपि हमारे पास कोई है तो केवल आदिदेव भगवान सूर्य नारायण हैं, जो प्रत्येक धर्म पंथ समुदाय के घर को प्रकाशित करने के साथ साथ आरोग्य के प्रदायक हैं, और सूर्य संपूर्ण मानव जाति के लिए इतना बड़ा संकेत देने का कार्य करते हैं, जो केवल प्रकाशित न करने के साथ साथ जाने कितने अद्भुत कार्यों को अंतस के विषय में या किसी भी आप पारंपरिक परंपराओं के विषय में आप कह सकते हैं। तो मैं अर्ज करना चाहूँगा कि जाति और ये जो समीकरण आज बिगड़े हुए हैं समाज के, ये तो निसंदेह भारत का दुर्भाग्य है। लेकिन मेरा विश्वास है कि सूर्य योद्धा के माध्यम से जातिवाद का ये जो जहर उत्पन्न हो रहा है उसे हम नष्ट करने में सफल होंगे और कर्मयोग की स्थापना करेंगे। ठीक है, ये जो सूर्य रथ यात्रा का जो आयोजन किया है, विश्व की प्रथम जो सूर्य रथ यात्रा है जी, कब शुरू होगी, कहाँ से होगी, कहाँ घूमेगी, कहाँ जाएगी, क्या करेगी ये रथ यात्रा? मैं आपको कहना चाहूँगा, देखिए सूर्य रथ यात्रा का महाआयोजन का विषय नहीं है, विषय है संजोग का। अच्छा, ये साक्षात सूर्य नारायण जो विश्व को प्रकाशित करते हैं उनका कार्य है। उनकी शुभेच्छा अनुसार हम तो सज्ज हैं, बराबर। यद्यपि कल उनका आदेश आएगा तो निश्चित रूप से कल हमारी पूरी तैयारी है। मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले कुछ ही दिवस उपरांत 1 से 2 महीने, चूंकि कोरोना का भी एक माहौल भारतवर्ष में विश्व भर में है, तो जैसे ही समीकरण अनुकूल हो जाएंगे तो निसंदेह हम सूरत शहर से, जैसे मैंने आपसे अर्ज करा, सूरत शहर से हम इसे प्रारंभ करेंगे माँ तापी भगवती के सानिध्य से। भारत तक सीमित रहेगी या जी, हम इसे सूरत से लेके ओडिशा के कोणार्क मंदिर तक ले जाएंगे और इसकी अवधि लगभग 10 से 12 महीने की रहेगी। 10 से 12 महीने तक नगर नगर ढाणी ढाणी जाके हम सूर्य रथ यात्रा के इस महाआयोजन उपरांत जनमानस से जुड़ने का कार्य करेंगे। अच्छा, इसके साथ और कोई कार्यक्रम होंगे कि क्या, क्योंकि कोई भी रथ यात्रा निकलती है, कोई भी काफिला निकलता है तो रात को कोई प्रोग्राम होता है, कई अलग अलग जगह अलग अलग प्रोग्राम होते हैं इसके साथ जुड़े हुए, तो ऐसा कोई प्रोग्राम या ऐसा कोई मैनेजमेंट आयोजन है कुछ? अवश्य इस विषय में आपको बताना चाहूँगा दिलीप जी, ये संस्कृति का पुनः स्थापन है। अच्छा, इस हेतु मैं आपको अर्ज करना चाहूँगा कि जहाँ जहाँ हमारी यात्रा, जैसे कि सूर्य
उदय होता है तो ये प्रारंभ की जाएगी, और सूर्यास्त होता है तो प्रत्येक दिन दिनचर्या के उपरांत इसे हम सूर्यास्त तक ही जहाँ पहुँचेंगे वहाँ हम तक सीमित जी रहेगी। जी जी और प्रत्येक दिन इसी दिनचर्या के उपरांत हम आगे बढ़ेंगे। दूसरी मुख्य बात मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें हवन इत्यादि के हमने कई आयोजन समय समय पे करे हुए हैं। तो जैसे ही तारीख सुनिश्चित हो जाएगी उसके पश्चात हम एक एक करके अपनी सारी गतिविधियां सार्वजनिक तौर पे प्रस्तुत और आयोजन करना प्रारंभ कर देंगे। अच्छा, एक बात इसमें कि भारतीय संस्कृति है, वो संस्कृति को विश्व फलक पर ले जाने की बात है। जी, जी। इसके जरिए ऑलरेडी भारतीय संस्कृति मैं मानता हूँ विश्व फलक पर है, और क्या इससे बल मिलेगा इस यात्रा से भारतीय संस्कृति को? देखिए, इस प्रश्न के विषय में एक बहुत बड़ा संदेश मैं GTPL के श्रोताओं को देने जा रहा हूँ। आज कोरोना जैसी महामारी विश्व को ग्रसित करके उत्पीड़ित कर रही है। जाने कितने लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है कि अकबर, जो त्रिकालखंडी राजा जिसे कहा जाता है, वो स्वयं अपने जीवनचर्या और दिनचर्या के उपरांत सूर्य सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करता था। और एक बहुत ही अद्भुत व्यक्तित्व के द्वारा, जैन मुनि महाराज के द्वारा, उनको एक मंत्र की प्राप्ति हुई थी जो स्वयं अपने जीवनचर्या के उपरांत करते थे। तो विश्वगुरु भारत आज से नहीं है, नियति का एक परम सत्य है। जब से सृष्टि की उत्पत्ति हुई तब से भारत विश्वगुरु है, और विश्व कल्याण की बात प्रथम भारत ने ही करी है। भविष्य में भी विश्व कल्याण के लिए, जनमानस को यथासंभव चेतना इत्यादि देने के लिए भारत ही अग्रसर रहेगा। सूर्य रथ यात्रा के उपरांत भारत विश्व स्तर पर प्रथम ऐसा राष्ट्र बनेगा जो आदिदेव के विचारों को प्रस्तुत करने के लिए अग्रसर होगा। इससे कर्मयुग की स्थापना होगी। और आज युवाओं को जिस प्रकार अनेकों बीमारियों ने उत्पीड़ित कर रखा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यद्यपि सूर्य के विचारों को दिन प्रतिदिन किसी मंच के माध्यम से हम प्रस्तुत करेंगे तो लाखों बीमारियों का एकमात्र अगर निदान है तो वो केवल और केवल सूर्य के विचार हैं, जिससे आज का युवान निश्चित रूप से सारी बीमारियों से आज़ाद हो सकता है, सारी बीमारियां उसके जीवन से समाप्त हो सकती हैं। अच्छा, ये विचार जब आपने किया और एक प्लान ये भी किया है कि विश्व की प्रथम सूर्य रथ यात्रा निकलेगी, ऐसा एक प्लान भी किया है, How come? कितना सपोर्ट मिलता है आपको और कहाँ कहाँ से सपोर्ट मिलता है, कितने लोग जुड़े आपके साथ? मैं निश्चित रूप से इस विषय में आपसे अर्ज करूँगा। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये मेरा परम सौभाग्य है कि मैं इस विषय को लेकर जितने भी जनमानस से जुड़ रहा हूँ, मिल रहा हूँ, मुझे उसी प्रकार के व्यक्ति प्राप्त हो रहे हैं जिनका उस विषय में एक रुचि है, वो इस विषय में रुचिकर हैं। तो निश्चित रूप से ये मेरे सौभाग्य की बात है। अब तक हमने गुजरात की धरा से इसका श्री गणेश किया है हाल ही में, और कुछ एक जिलों में हमने इसकी नियुक्तियां भी करी हैं। और अब हम रथ यात्रा के महाआयोजन के उस संजोग उपरांत अग्रसर होने जा रहे हैं। तो लाखों करोड़ों की जनसंख्या में जनमानस जुड़ेगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। एक मुख्य बात मैं अर्ज करना चाहूँगा, युवाओं के इच्छा शक्ति को देखते हुए सूर्य योद्धा डिजिटल ऐप प्ले स्टोर पे आ चुकी है। बहुत जल्द हम उसे लॉन्च करने जा रहे हैं, और उस पर पारंपरिक जो ब्लॉगिंग इत्यादि होती है, हम उस पर लिखने का कार्य करेंगे और हमारे युवाओं तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। अच्छा, एक बात यह है कि हर धर्म को सम्मान एक उद्देश्य ये भी है इसमें। कैसे आप मानते हो कि मतलब हर धर्म का सम्मान नहीं हो रहा है? पहले तो सवाल ये है कि क्या हर धर्म का सम्मान यहाँ नहीं हो रहा है? ये भी एक उद्देश्य जो आपके साथ जुड़ा हुआ है, आपकी जो संगठन के साथ जुड़ा है, उद्देश्य का मतलब क्या है? दिलीप जी, आपने बहुत ही अद्भुत प्रश्न करा है। देखिए, प्रश्न ये नहीं है कि सम्मान नहीं हो रहा है, प्रश्न ये है कि धर्म पंथ समुदाय ये आपकी शुभेच्छा नहीं है, ये नियति का परम सत्य नहीं है। नियति का परम सत्य क्या है कि सूर्य और चंद्र किसी भी धर्म के निजी नहीं है। यद्यपि हमें अपने जीवन में ऐसा कोई माध्यम मिले जिससे हम धर्म पंथ समुदाय की विचारधारा और जातिवाद की विचारधारा से निकलते हुए मानव कल्याण के लिए, मानव जाति की भलाई के लिए यद्यपि एक मंच बनाने के लिए अग्रसर होते हैं, तो मुझे लगता है ये न केवल भारत राष्ट्र का परम सौभाग्य होगा, अपितु ये संपूर्ण मानव जाति का भी परम सौभाग्य बनने जा रहा है। पर जब भी ऐसी एनजीओ, ये संस्थाएं जब भी ऐसा कुछ काम करती है, तब लोग सोचते हैं कि ये अपने नाम के लिए करते हैं, ये अपने काम के लिए करते हैं, इसके लिए पैसे चाहिए, फंड चाहिए, ये सब भी ज़रूरत पड़ती है। ऐसे ही कोई निकल जाता है और रथ यात्रा निकल गई, ऐसा नहीं होता है। लाखों
करोड़ों रुपये चाहिए, इसमें कहाँ से फंड आएगा, कैसे मैनेज होगा, क्या करेंगे? दिलीप जी, ये आदिदेव का कार्य है। मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने ये प्रश्न करा है। देखिए, जो संपूर्ण विश्व को प्रकाशित करने का कार्य करते हैं, उनके कार्य में किसी भी प्रकार का अंधेरा उत्पन्न हो जाए, ये संभव ही नहीं है। फंड इत्यादि के विषय में वो लोग चिंतन करते हैं जो कर्मयोगी नहीं होते। अच्छा, हम कर्मयोगी हैं, और हमने यद्यपि सूर्य योद्धा के नाम के इस झंडे को उठाया है, तो हम स्थापित भी करेंगे। और मेरा आपसे वचनबद्ध होके आज इस वार्ता उपरांत मैं कहने जा रहा हूँ, मैं वचनबद्ध होकर ये कहने जा रहा हूँ कि संपूर्ण विश्व पटल पे भारत को सूर्य के विचारों को अग्रसर करने के लिए, स्थापित करने के लिए प्रथम राष्ट्र हम बनाने जा रहे हैं। उसमें मुझे कोई संदेह इत्यादि नहीं है। बिल्कुल। एक बात ये भी है कि राजकुल नहीं, राष्ट्रकुल, ये बात है कि राजकुल की विचारधारा से लेकर राष्ट्रकुल की विचारधारा तक ये आपने बात की है। तो कौन सी विचारधारा ये राष्ट्रकुल और राजकुल की जो आप बात कर रहे हो? देखिए, मैं किसी संगठन पर कटाक्ष नहीं करना चाहूँगा। सबकी अपनी विचारधाराएं होती हैं और सभी की विचारधाराओं को मेरा खूब सम्मान। राजकुल नहीं, राष्ट्रकुल का एकमात्र तात्पर्य है कि इस संगठन की कोई भी गतिविधि राजनीतिक लाभ के लिए नहीं होगी। इसका तात्पर्य है राजकुल नहीं, अथवा राजनीति से नहीं, राष्ट्रनीति से। हम ये कार्य केवल राष्ट्रकुल के सम्मान के लिए करने जा रहे हैं। और मेरा विश्वास है कि जब भारत विश्व पटल पे आदिदेव के विचारों को स्थापित करेगा, तो संपूर्ण विश्व भारत को एक अलौकिक और अद्भुत आभा मंडल के साथ देखने का कार्य करेगा, जो मेरे जीवन का परम सौभाग्य और एक उच्च कोटि की सफलताओं में से मैं स्वयं अनुभूति कर पाऊंगा। अच्छा, कई लोग ये मानेंगे कि राजकुल यानी अभी जो राज्य चल रहा है, सरकार चल रही है, उससे हटके राष्ट्रकुल की जो बात है उस पर जोर दिया जा रहा है ये संगठन के जरिए। देखिए, आज की सरकार अपनी जिम्मेदारियों के उपरांत जो कार्य करने जा रही है, निसंदेह वो अच्छा कार्य कर रही है। मेरा उसमें कोई प्रश्न इत्यादि नहीं है। लेकिन राष्ट्र के सम्मान में भी आज की सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी, क्योंकि किसी भी सरकार का प्रथम अगर कोई दायित्व या कर्तव्य होता है तो राष्ट्र का सम्मान ही होता है। तो हम राष्ट्र के सम्मान में ही कार्य कर रहे हैं, और इसे राजनीति से जोड़ के देखना भी नहीं चाहिए। इसका मुख्य कारण ये है कि ये संस्कृति का पुनः स्थापन है, ये कर्मयोग की बात है, तो इसमें राजनीति इत्यादि जैसे विषय ना आ मतलब एक बात है कि मतलब हर धर्म का सम्मान यहाँ नहीं होता है, और दूसरी बात यह है कि जातिवाद भी अभी यहाँ भारत में देखने को मिलता है। ये बात साफ साफ है। देखिए, जातिवाद तो है ही, आप और मेरे उसे सहमति देने से वो चीज़ डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन मैं आपको अर्ज करना चाहूँगा, जिन लोगों को किसी के धर्म का सम्मान करना है नहीं करना है, वो उनकी स्वयं की शुभेच्छा है। हम तो नहीं होता है, हर धर्म का सम्मान होता है। आप क्या मानते हैं? आपने भी थोड़ा देखिए, मैं ऑब्जर्व किया होगा। आप एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट चाह रहे हैं, लेकिन मैं अर्ज करूंगा, मैं कर्मयोगी हूं और मुझे कर्मयोगी बना रहने दें। जो लोग सम्मान करते हैं, ये उनके स्वयं के विचार हैं। जो नहीं करते हैं, मैं कोई पॉलिटिकली, मैं ये पूछता हूँ कि अभी भी जातिवाद है, हर धर्म का सम्मान नहीं होता है आज के दौर में? मैं ये पूछता हूँ। इस बात को मैं सहमत करता हूं। हर धर्म का सम्मान होता है कि नहीं होता है? देखिए, जो सम्मान करते हैं, मेरे जहन से या मेरे ओपिनियन से अगर आप देखने जाएं, तो मैं आपको अर्ज करना चाहूँगा, सम्मान वही दे सकता है जिसने सम्मान धारण किया हो। तो मैं तो अटूट सम्मान का अधिपति नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ कि हर धर्म का सम्मान यहाँ होता है भारत में। आप मानते हो? निश्चित रूप से, मुझे उसमें कोई संदेह नहीं। तो फिर उद्देश्य का कोई मतलब नहीं है आपके? नहीं, मतलब है, क्योंकि ये राष्ट्र पटल की बात नहीं, ये अंतर्राष्ट्रीय पटल की बात है, और भारत के सम्मान की बात है, विश्व स्तर की बात है। ये जातिवाद का जहर अभी भी है भारत में, वो देखने को मिलता है। देखिए, ये राजनीतिक स्टेटमेंट इत्यादि हैं जिसमें ये राजनीतिक नहीं, मैं सीधा पूछ रहा हूँ कि मतलब जातिवाद का जहर है कि नहीं यहाँ? जातिवाद का जहर है, और ये भारत का भविष्य जो है निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर रहा है, जिसे देखने की जरूरत है। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जातिवाद के जहर के लिए हम स्वयं हैं। प्रत्येक नागरिक इस विषय के लिए जिम्मेदार है। अच्छा, इसके लिए पर्टिकुलर कोई पार्टी इत्यादि जिम्मेदार नहीं है। नहीं, लोग कहते हैं कि सरकार जिम्मेदार है, सरकार जातिवाद करती है और राजनीति करती है। ये आपने स्वयं कहा कि लोग कहते हैं। हाँ, लोग कहते हैं। अर्जुन सिंह टिकरिया तो ये नहीं कहता, तो मेरा ये ओपिनियन नहीं है। अच्छा, युवाओं को एक संदेश देने की बात है कि जो पूर्वज हैं, उनके पराक्रम है, उनको पुनः जीवित करना है और युवाओं के सामने लाना है। कौन से पराक्रम और क्या बात जिसको आप युवाओं के सामने लाना? संपूर्ण संसार के लिए भगवान कृष्ण और लॉर्ड रामा से बड़ा आराध्य और आदर्श
मैं अपने चक्षुओं के उपरांत कह सकता हूँ नहीं हो सकता। तो मैं अर्ज करना चाहूँगा, ऐसे महापुरुषों और ऐसे आदर्शों के विचार जीवंत होने चाहिए और आज की पीढ़ी को हमें निश्चित रूप से उनके लिए अग्रसर करना चाहिए, उनके जीवन में इस प्रकार के विचारों को लाने का कार्य करना चाहिए। कितना विश्वास है आज के युवा पर, धर्म की बात, महापुरुषों की बात, आदर्श की बात जो वो एक्सेप्ट करेंगे। हालांकि विज्ञान और टेक्नोलॉजी के युग में युवा डूबे हुए पूरे। देखिए, विज्ञान का तो महत्व आज है, लेकिन विज्ञान में भी ज्ञान है। अगर ज्ञान निकाल दें तो खाली वी से कुछ होने वाला नहीं है। तो मैं अर्ज करना चाहूँगा, ज्ञान प्रथम है, विज्ञान द्वितीय है। तो ज्ञान प्रथम ही रहेगा और भारत के ब्लड में है, भारत के डीएनए में है कि भारत और ज्ञान का कोई दूरी नहीं है, ये सदैव साथ थे और साथ रहेंगे। ठीक है, ये अच्छी बात है। हालांकि अर्जुन सिंह कि आप भारत को विश्व गुरु बनाने की बात कर रहे हैं, विश्व कल्याण की बात कर रहे हैं, एक मैसेज अगर आपके संगठन के ज़रिए देना है, अर्जुन सिंह थिकरिया अगर कोई मैसेज दे रहा है तो क्या मैसेज आप देना चाहते हैं? मैं यही अर्ज करना चाहूँगा कि सूर्य योद्धा एक संगठन अवश्य है, परंतु ये भारत के सम्मान के लिए अग्रसर रहेगा और भारत का सम्मान आने वाले भविष्य में परम सौभाग्य के रूप में मैं अनुभूति कर रहा हूँ। चूँकि भारत को विश्व की प्रथम सूर्य रथ यात्रा के महाआयोजन का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है, जो विश्व पटल पे हम ले जाने का कार्य करेंगे। और मैं GTPL के भी सभी श्रोतागण को धन्यवाद कहना चाहूँगा कि GTPL ने इसकी प्रथम पहल में निमित्त बनने का कार्य करा है। तो मैं GTPL श्रोताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद इस विषय में कहना चाहूँगा। कौन जुड़ सकता है इस संगठन में? ये 36 कौम के लिए समर्पित है और प्रत्येक धर्म पंथ समुदाय के व्यक्ति इस संगठन से जुड़ सकते हैं। कोई अगर पॉलिटिकल जो पर्सन है वो इसमें जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। देखिए, आदि देव तो सभी के घरों को प्रकाशित करते हैं, राजनीतिक, बॉलीवुड, क्रिकेटर, ये तो आप हमारे सबके विषय हैं। आदि देव ने ये विषय उत्पन्न नहीं करे, तो ये तो उनका कार्य है। जिसकी शुभेच्छा होगी वो इस संगठन का पात्र बन सकता कोई भी हो, मतलब पॉलिटिशियन हो, एक्टर हो, कोई भी हो, वो सब जुड़ सकते हैं। हर विषय का व्यक्ति इससे जुड़ सकता है, पर इसकी विचारधारा को उसको अपनानी पड़ेगी। देखिए, आदिदेव नियति का परम सत्य है और वो इसे ठुकरा नहीं सकते या इसे झुटला नहीं सकते। तो परम सत्य ही रहेगा। દર્શક મિત્રો, ઘણી બધી વાત અર્જુનસિંહ ઠીકરિયા સાથે કરીને ખાસ તો જે ઉદ્દેશ્ય લઈને આવ્યા છે, ઉદ્દેશ્ય બહુ સારો છે, નો ડાઉટ બહુ પ્રયત્ન કર્યો, એમની પાસેથી ઘણા એવા પ્રશ્નો કર્યા, પરંતુ એક જ વાત છે કે જે સૂર્ય ભગવાન છે ને એમનો પ્રકાશ જે ફેલાવે છે, કોઈ ધર્મ જ્ઞાતિ કે કોઈ સમુદાયને જોતો નથી, તમામ લોકોને એક સરખો પ્રકાશ આપે છે। એવી જ રીતે વિશ્વ કલ્યાણની ભાવના છે, વિશ્વ ગુરુ ભારત બને એની ભાવના છે। ભારતની સંસ્કૃતિનું વિશ્વના ફલક પર એક પ્રકાશ પડે એવી એક ઉદ્દેશ સાથે જ્યારે આ સૂર્ય યોદ્ધા સંગઠનની સ્થાપના કરવામાં આવી છે અને સાથે જ વિશ્વની પ્રથમ સૂર્ય રથ યાત્રાનું જે આયોજન કરવામાં આવ્યું છે એ માત્ર ને માત્ર એટલે કે જે વિચારધારા છે, જે ઉદ્દેશ્ય છે, સમાજ હિત માટે છે, ભારતના હિત માટે છે, વિશ્વ કલ્યાણ માટેનો આ એક ઉદ્દેશ છે। અને આવી એક રથયાત્રાનું જ્યારે આયોજન કરવામાં આવ્યું છે કે જેમાં તમામ ધર્મના લોકો, તમામ સંસ્કૃતિના લોકો પણ જોડાઈ શકે છે, તમામ લોકો જોડાઈ શકે છે અને સાથે જ ક્યાંક જાતિવાદ, ક્યાંક જે ધર્મનું સન્માન કરવું, એ બધી જ વાતોને સાંકળીને યુવાઓને જોડીને, અને બીજી એક વસ્તુ કે છે આપણા પૂર્વજો છે એમણે જે કાર્યો કર્યા છે, એમણે જે પરાક્રમો કર્યા છે એને ઉજાગર કરી યુવાઓમાં પણ એક જોશ લાવવાનું કામ કર્યું છે। એક એપ પણ લોન્ચ કરવામાં આવી છે। એમની ઈચ્છા છે કે યુવાઓ મોટે ભાગે એમાં જોડાય અને રથયાત્રાનું જે આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, વિશ્વની પ્રથમ સૂર્ય રથયાત્રા છે। આવી કોઈ જ રથયાત્રા ભૂતકાળમાં નીકળી નથી, એટલે એક નવું જ આયોજન કર્યું છે। ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ અર્જુનસિંહ ઠીકરિયા, हमारी भी आपको शुभेच्छा। જી દિલીપજી। તો દર્શક મિત્રો, આ હતી ખાસ ડે સ્પેશિયલ કાર્યક્રમમાં આજની ચર્ચા, અને ચર્ચામાં ભાગ લેવા બદલ અર્જુનસિંહ ઉપસ્થિત રહ્યા, થેન્ક યુ વેરી મચ। ઇટ્સ ઓલ માય પ્લેઝર। ફરી મળીશું દર્શક મિત્રો ડે સ્પેશિયલ કાર્યક્રમમાં એક નવી ચર્ચા સાથે। જોતા રહો ગુજરાત ન્યૂઝ। નમસ્કાર।